Hello everyone, this is Aditya Prajapati. I come from a very humble background. I come from village areas. And today I am going to pick up a very important topic that is about how do you start thinking in English. Now we don't want to translate from Hindi to English or our regional language to English language. We just have to think directly in English language. So how do you start thinking in English language? So this is the basic question that so many guys have asked about how do you start thinking. So this is what I have picked up in this video. I will be telling everything about this. How do you start thinking? How did I start thinking in English language? Today, frankly speak, I don't have to translate. I am just speaking. I don't need to think कि पहले मैं हिंदी में सोचूं फिर मैं ट्रांसलेट करूं. मुझे आवश्यकता नहीं. I don't need really. So how did I start thinking in English? So मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपके लिए कुछ रिलेवेंट टिप्स लाऊंगा जिसके सारे आप इंग्लिश में ही सोच सकेंगे, इंग्लिश में ही डायरेक्ट आप बोल सकेंगे. आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, what do you have to do is in starting मैंने क्या किया था? I just used to learn sentences. मैंने grammar पर ज़्यादा focus नहीं किया. I never focused on grammatic things very much. I just knew some things about the 12 sentences. So I was able to form the sentences. So please, in starting you just have to know little bit about grammar 12 sentences so that you can form the sentences. So in starting for 21 days you just have to do one thing is you just have to learn everyday uses sentences. आपको everyday life की जो sentences होते हैं you have to learn. You have to follow some YouTube channels in which the guys are telling about how to speak English in everyday life. The sentences, those are really relevant for using in everyday life. So you just have to learn those sentences and you have to use those sentences. You don't have to just learn, but also you have to speak. Without speaking you cannot learn this language. So firstly you have to learn the sentences every day, and after that you have to use those sentences. If you don't have anyone to talk, don't worry, you can speak in front of the mirror, you can talk to yourself, you can shoot your video, it doesn't matter, there is no one who can make fun of you. So this is what you have to do. If you will do it, you will be able to learn the sentences in an easier manner. You will be able to have some thoughts those are stuck in your mind so that you will be able to think after some times. तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको मैं आपसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. आपको क्या करना है कि आपको शुरुआत में सेंटेंसेस लर्न करना है, उनको यूज करना है. आपको ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने तक फॉलो करना है. आपको ये करना है. डोंट बी फूल्ड इफ एनीवन इज टेलिंग कि मुझे डायरेक्ट इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट नहीं करना है, डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचना है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको सेंटेंसेस लर्न करना है डेली यूज के, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको डेली यू जस्ट हैव टू लिसन अ लॉट इन दिस लैंग्वेज. जितना ज्यादा हो सके, जितने घंटे पॉसिबल है, आपको लिसनिंग करनी है. फ्रॉम टुडे प्लीज कीप प्रॉमिस कि आप आज से अपनी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में कोई भी कंटेंट नहीं देखेंगे. ओनली यू जस्ट हैव टू वॉच एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू एक्चुअली want to speak good English. तो आज से ही और अभी से ही आपको हिंदी में जो भी आप देखते हैं उसको नहीं देखना है, बंद कर दीजिए. आपको जो भी देखना है इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है. इंग्लिश डब्ड बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उनको देखना है. आप इंग्लिश में व्लॉग वॉच कर सकते हो. आप अमेरिकाज गॉट टैलेंट शो देख सकते हो. सो देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी अल्टरनेटिव वेज
to enjoy in this language. If you are listening to the songs in Hindi language, you don't have to do it. You just have to stop listening the things in Hindi language. Please guys, ये आपको करना पड़ेगा. From my single day when I started thinking that I have to learn this language, तो मैंने हिंदी में जो कुछ भी देखा था मैंने उसको देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लर्न करना है जल्दी से, तो मुझे हिंदी में स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे इंग्लिश में सुनना है. क्योंकि आप यदि हिंदी में कुछ सुन रहे हैं उसके लिए आपको टाइम चाहिए, इंग्लिश में भी सुनना है उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, तो आपके पास इतना टाइम कहाँ है. सो यू जस्ट हैव टू लिसन टू द थिंग्स ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम योर सिंगल डे. प्लीज गाइज, यू हैव टू डू इट. आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिसनिंग करनी है और उसके साथ साथ 1 महीने तक आपको डेली यूजेस सेंटेंसेस को लर्न करना है, उनको एवरीडे लाइफ में यूज करना है, बोलने का प्रयास करना है. इफ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज सीरियसली गाइज, तो आपको ये 2 चीजें करनी है. शुरुआत में आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को लर्न करना है एवरीडे लाइफ, उनको यूज करना है. हाँ ओके, यूज करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है. और बोलने के लिए आप यदि देयर इज नो फ्रेंड विद whom you can talk, there is no one to help you, तो you can talk to the mirror. आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है. और आपको क्या करना है, लिसनिंग करनी है. स्टार्ट कर दीजिए लिसनिंग करना जितना ज्यादा हो सके. आप ब्लॉग्स देखिए, एंजॉयबल जो टूर जाते हैं गाइस उनके वीडियोस देखिए, नेचुरल टॉपोग्राफीज देखिए, इस तरीके से एंजॉय करिए उसको. आप अमेरिकाज गॉट टैलेंट शोज दे सकते हैं, इंग्लिश में ही जो कुछ भी आप पॉसिबल हो वो देखिए. प्लीज गाइज, ये 2 चीजें करिए शुरुआत में. एंड आफ्टर समटाइम्स, मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, आई कैन अश्योर यू दैट आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर 1 month, यू विल बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश. यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट. आपको आवश्यकता नहीं होगी ट्रांसलेट करने की. आप थिंक करने के लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे. आप इंग्लिश में ही बोल पाओगे डायरेक्टली. आपको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने इतना ज्यादा लिसनिंग की है, प्रैक्टिस की है, आपने बोलने का प्रयास किया, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस को लर्न किए, वो आपके माइंड में बैठ चुके हैं भाई. क्योंकि हम जो बचपन में थे तब हमारे माता पिता जो भाई बहन है वो हिंदी में बोला करते थे या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलते थे. ऐसे धीरे धीरे हमारे माइंड में बैठता गया और एक दिन आया हम बोलने लगे. तो इस तरीके से आपको लिसनिंग करना है और कुछ सेंटेंसेस को लर्न करते जाना है, वो आपके माइंड में बैठते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा वो अपने आप खुद ही निकलेंगे. आपको कुछ ज्यादा सोचने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से ही निकलेंगे. ये हमारे माइंड की प्रोसेसिंग है. दिस इज हाउ आवर माइंड प्रोसेस. इस तरीके से ही हमारा माइंड प्रोसेस करता है गाइज. This is what you have to do and if you will follow these 2 things in your life, तो मैं सच में कह रहा हूँ आप बहुत ही इसी तरह से इंग्लिश लर्न करेंगे. और ये है सबसे इफेक्टिव वे आप कैसे इंग्लिश में सोच सकते हो, इंग्लिश में ही डायरेक्ट कैसे बोलना है, इस तरीके से आप इंग्लिश में डायरेक्ट बोल सकते हो. और ये ही मेरी वीडियो का थीम था. मेन थीम ऑफ द वीडियो वाज कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी डोंट वांट टू ट्रांसलेट. तो यदि आपने कुछ सीखा है मुझसे, आपने कुछ लर्न किया है, इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी, सो प्लीज एक लाइक कर देना क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है. इफ यू आई मीन लाइक एटलीस्ट इफ यू डू 1 like, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा आई मीन आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मेक न्यू वीडियोज इफ यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज. Okay, have a good day. We will meet in another video. Bye bye.